देखो मेरा ऑडियो क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो फिर। राइट। सो हमने अभी डिस्कशन शुरू किया इलेक्ट्रिक पावर पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इट इज द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितना काम कर पाते हैं उसे ही हम डिफाइन करते हैं एज पावर। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि बल्ब तो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन हम कहते हैं बल्ब का पावर इज 100 वॉट, 50 वॉट, है ना? तो बल्ब तो कोई काम नहीं कर रहा। तो हम क्योंकि पीछे से पढ़कर आए हैं कि वर्क डन एंड एनर्जी दे आर इक्विवेलेंट, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज ऑल्सो पावर। राइट और नॉट? है ना? क्योंकि जितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा उतना ही तो काम होगा। और वो जो बल्ब है वो क्या कर रहा है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो दैट इज इट्स वर्क। सो अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो बी इट वर्क डन, बी इट एनर्जी कंज्यूम्ड, आप दोनों को ओवर टाइम कैलकुलेट करते हो एंड देन यू फाइंड आउट द पावर। पावर का यूनिट इज, एसआई यूनिट इज वॉट, WA, watt. And watt is defined as, what is one watt? No, define 1 watt. I've told you all these are important. What is 1 coulomb? What is 1 watt? What is 1 joule? ये सब जो वन वाले होते हैं ना फिजिकल यूनिट से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर हम वॉट को डिफाइन करें, व्हाट इज 1 वॉट? 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड। दैट मीन्स हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? अब a device is said to have power of 1 watt। किसी हम डिवाइस में 1 watt पावर तब कहेंगे when it is when it is working 1 joule in 1 second, right? or 1 joule of work is done in 1 second। मतलब मुझे डेफिनेशन को ही, फॉर्मूला को ही डिफाइन करना है in my own words to give the definition for what, right or not everyone? When 1 joule of work is done in 1 second, that is defined as the पावर ऑफ अ डिवाइस 1 वॉट। क्लियर? नो? ठीक है ना? चले अभी आगे नेक्स्ट पार्ट पे स्टडी करें, नेक्स्ट पेज पे। राइट। ओके, नाउ वी विल बी लुकिंग टू टुवर्ड्स द बिगर यूनिट्स ऑफ व्हाट, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। तो बहुत छोटा यूनिट है 1 वॉट, व्हेन इट इज 1 जूल पर सेकेंड, बहुत स्मॉल यूनिट है। इसीलिए टू गो विद द बिगर यूनिट्स, व्हाट हैव वी डन? किलो लगा दिया हमने साथ में, दैट इज 10 to the power 3 watts। सो 1 kilowatt इज 10 to the power 3 watts, राइट? 1 megawatt क्या हुआ देन? व्हाट इज 1 megawatt देन? 10,000। 10 to the power 6 watt, राइट? 1 kilowatt is 10 to the power 3, 1 megawatt is 10 to the power 6। वो खैर मोस्टली फॉर्मूलाज में नहीं आता है। बट व्हाट इज 1 kilowatt? दैट इज 1000 watts टुगेदर इज 1 kilowatt। Now it should be noted that the symbol for watt is capital case W, capital W, no? And that for kilowatt is small k and capital W. When work is done, an equal amount of energy is also consumed. They are telling you the same thing now, that in the formula where you have written work done, there you can replace it with the word energy also. So now you can define power as energy per unit time as well. So power is the rate at which electrical energy is consumed. Rate at which electrical energy is consumed means per unit time kitna electric energy is consumed. Right everyone? Clear, no? In other words, the electric power is the energy consumed per second. We can now write down another definition of what based on electric energy. When an electric appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second, the power is said to be 1 watt. Clear everyone or not? जब कोई बल्ब अगर 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है तो आप उस बल्ब को 1 वॉट का बल्ब कहेंगे। राइट एवरीवन और नॉट? तो 100 वॉट का बल्ब मीन्स 100 जूल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 100 जूल्स कंज्यूम करने वाले बल्ब को आप 100 वॉट का बल्ब कहते हैं।
right? Clear, no? The rate at which electrical work done is electrical work is done, or the rate at which electrical energy is consumed is called electric power. So now we can conclude here that either it is the work done, the rate of work done either, or it is the rate of energy consumed. Both ways it is electric power. Got it everyone? Clear now? चले अभी आगे. Now we have got the formula of P is equals to W by T. Work done upon time taken. Now from here, bache, tell me one thing. This we already know that we have already studied that work done W by current when it flows for time t under a potential difference V is W is equals to V into I into T. देखो आपने ये कैसे किया था. जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस पर आप कोई करंट पास कर रहे हो फॉर सम टाइम टी फ्रॉम अ सर्किट, आप इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो दैट इज एक्चुअली द वर्क डन ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. कितने वॉट का बल्ब कितना करंट फ्लो कराते हुए, कितने वोल्ट, कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग. अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करें दैट इज द वर्क डन, राइट? अब मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूला में W से इसे रिप्लेस कर दिया. सो इट इज V into I by T over T. Now this T से T got cancelled, so we have got the new formula for P is equals to VI, that V into I, that is power is equals to potential difference into current. और मैंने कैसे याद किया था? पवाई. That's a place in Mumbai, right? है ना? So P is equals to V into I. So that is one new formula. अब इसके बाद आप कितने भी फॉर्मूला इसमें से बना सकते हो. लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास फॉर्मूला में ना V गिवन नहीं है, आई और आर पे बेसिस पे बात हो रही है, तो मुझे पावर का न्यू फॉर्मूला चाहिए. तो डू आई रियली नीड टू लर्न अ न्यू फॉर्मूला? जब मुझे पवाई याद है तो मैं यहाँ V का फॉर्मूला पुट करूंगी इन द टर्म ऑफ आई एंड आर. व्हाट इज दैट? V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट? तो एक आई आर हो गया यहाँ पर V के लिए, एंड एक आई ये रहा. तो क्या मैं फॉर्मूला डिफाइन कर सकती हूँ? P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. दैट्स द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ पावर नाउ. ओके, अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, मेरे पास इस फॉर्मूला में आई गिवन नहीं है. क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आई गिवन नहीं है, वी और आर के टर्म्स में बात हो रही है, तो मुझे न्यू फॉर्मूला चाहिए विच इज इन द टर्म्स ऑफ वी एंड आर. तो मैं क्या करूं, यहाँ से आई की क्या वैल्यू होती है? वी बाय आर. तो क्या मैं यहाँ पर एक वी, ये जो वी था वो, और आई के लिए एक वी बाय आर लगा सकती हूँ. तो फॉर्मूला क्या बन गया नेक्स्ट? पी के लिए पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर. गेटिंग इट और नॉट बेटा? दैट इज द थर्ड फॉर्मूला. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? समझ में आ रहा है किसी को क्या चल रहा है यहाँ पर? तो जो अभी आपको एक लॉन्ग लिस्ट दूंगी मैं फॉर्मूलाज की, उसमें से सारे फॉर्मूलाज इसी फॉर्मूलाज में वैल्यूज रिप्लेस करके बने हैं, राइट? दोबारा से समझाऊं या समझ में आ गया सबको? Explain क्या बच्चे? could you explain again? इफ इट वॉज P इज इक्वल्स टू V इंटू आई बेटा, और मैं यहाँ पर आपको कहती हूँ कि मुझे एक फॉर्मूला ऐसा चाहिए जिसमें मुझे V नहीं चाहिए, मेरे क्वेश्चन में V का कोई रेफरेंस नहीं है, I और R पे बात हो रही है, तो पावर कैसे कैलकुलेट करूँ? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लिया. P इज इक्वल्स टू V का वैल्यू था I इंटू आर, वो I इंटू आर V की जगह पर, और एक और I मिलाकर बन गया बेटा I स्क्वायर आर. राइट और नॉट? ठीक है ना? इसी तरीके से अब मैं कहती हूँ मेरे पास एक जो है पावर का फॉर्मूला है, अगर मुझे आई नहीं गिवन है, तो आई की बात नहीं है मेरे पास, तो वी और आर की टर्म्स में निकालना है. तो आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, वी डिवाइडेड बाय आर. तो वो फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर. राइट और नॉट बच्चे? देखो तीनों कॉम्बिनेशन हो गए ना, वी आई का, आई आर का, वी आर का. कोई कॉम्बिनेशन बचा तो नहीं है? कुछ भी, कोई भी दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन हो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट power from here. What if V and I and T is T is given to you, फिर पावर कैसा फाइंड करोगे? सिर्फ V और I से फाइंड कर दो. वैसे तो V I T gives you work done, उसे
टाइम से डिवाइड करके निकल सकता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई इंटू टी। तो वर्क डन अगर गिवन है तो आप उसे टाइम से डिवाइड करोगे, आपके पास पावर आ जाएगा। लेकिन इफ V एंड I सेपरेटली आर गिवन टू यू तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट पावर। है ना, वर्क डन का वैल्यू गिवन हो, एनर्जी कंज्यूम का गिवन हो, तो टाइम से डिवाइड करो एंड यू विल गेट इट। तो दीज आर 4 फॉर्मूलाज ऑफ पावर दैट यू हैव लर्नड बाय नाउ। एक कौन सा हो गया, P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, जिसे मैं एनर्जी अपॉन टी भी कह सकती हूँ। वर्क डन एंड एनर्जी दे आर सिमिलर टू ईच अदर, ये हमने 9th क्लास में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में सीख लिया था। तो हम यहाँ पर हर बार W की जगह E भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, आ रही है ये बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? 4 फॉर्मूलाज हो गए याद, आगे चले अभी। ओके देखो बच्चा, यहाँ पे वो दूसरे दूसरे फॉर्मूलाज बनाकर दिखाएंगे अभी आपको। एंड इसी तरीके से वॉट की डिफरेंट डेफिनेशंस भी आ रही हैं बच्चे। देखो, अगर आपने V इंटू आई किया तो आप 1 वॉट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? अभी आपने क्या कहा था, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट इज कंज्यूमिंग 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड, राइट? दैट इज हाउ वी डिफाइंड 1 वॉट। अब हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इफ एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट a current passing through a conductor is 1 ampere, then the power of that electric appliance is said to be 1 watt. Got it or not? तो watt की कितनी सारी डेफिनेशन हो सकती है ना बेस्ड ऑन दैट। है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, समझ पाओगे? ओके नाउ सम अदर फॉर्मूलाज जैसे डिराइव करके बताए हैं, बिल्कुल वही चल रहा है यहाँ पे काम। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो गया, V स्क्वायर बाय आर हो गया, राइट? अब हमें यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। हमारे पास 2 फॉर्मूलाज आ गए, एक आई स्क्वायर आर और एक V स्क्वायर बाय आर। तो अब आप क्या डिफाइन करना चाहते हो यहाँ से, कैसे कैसे समझे हम इसे? यहाँ पर हमें इट इज क्लियर दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। पावर क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। thus the resistance of high power devices is smaller than the low power ones। तो इसका मतलब क्या है, जो हाई पावर डिवाइसेस होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, राइट और नॉट? और जो लोअर पावर डिवाइसेस होंगे उनमें रेजिस्टेंस हाई रहेगा। गॉट इट और नॉट? हाई पावर डिवाइसेस के अंदर रेजिस्टेंस इज स्मॉल। ये V स्क्वायर बाय आर से हमें समझ में आ गया, राइट? चलें अभी आगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम बट सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बिकॉज इट्स I स्क्वायर R। लेकिन बेटा वहां पर आप देखो ना, आपने एक बात नहीं नोटिस की। चलो हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट दिया अद्विका ने बात करने के लिए। तो सुनो बेटा मेरी बात, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस वेरी वेरी करती है, राइट? आप वैल्यूज बदलो और वो चेंज हो जाएगी, है ना? आप V और I का वैल्यू चेंज करो, R चेंज हो जाएगा। तो वहां पर आपने जो इस वैल्यू की बात की है, I और R जो बेसिस पे आपने बात की है, वहां पर उस फॉर्मूला के अंदर आपने एक जो डेफिनेट क्वांटिटी है जिसके चेंज करने से R चेंज हो जाता है, उसकी बात नहीं की है, राइट? तो इसीलिए हम उसे नहीं डिफाइन कर रहे हैं, उसे यूज नहीं कर रहे हैं। गॉट इट बच्चे? आप इसे ऐसे समझ सकते हो, एक क्वेश्चन अभी आएगा, आगे आने वाला है, उस पे बताऊंगी कि व्हाई हैव वी यूज्ड दिस, नो? उस पे मुझे याद रहेगा, मैं आई विल डिस्कस दिस ऑन दैट पॉइंट। सो दीज 3 फॉर्मूलाज शुड बी मेमोराइज बिकॉज दे विल बी यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। आपको ये याद करने हैं फॉर्मूलाज। नाउ अब हम चल रहे हैं पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कि आप किस तरीके से पावर और वोल्टेज के हिसाब से रेटिंग होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की, दैट वी नीड टू discuss now। Every every electrical appliance like an electric bulb, radio or fan has a label or engraved plate on it which tells us the voltage to be applied and the electrical power consumed by it। For example, if we look at a particular bulb, we can see that this ऐसी information लिखी होती है बेटा, bulbs के metal piece के ऊपर engraved होती है ये, या फिर जो जिस बॉक्स में आता है उसके ऊपर लिखी होती है कि 100 वॉट का 220 वोल्ट्स पे रन होने वाला बल्ब है ये।
Now 100 watt means that this bulb has a power consumption of 100 watts, and 220 volt means that it is to be used on the voltage 220 volts. The power rating of an electrical appliance tells us the rate at which energy is consumed by the appliance. So a power rating of 100 watt means ये 100 joules energy per second consume करतेगा, right? If we know the power and voltage of an electrical appliance, we can very easily find out the current I drawn by it. कि वो कितना करंट रन हो रहा है उसमें से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई। जैसे कि यहाँ देखें 40 वॉट की एक ट्यूबलाइट है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस देना है आपको 220 वोल्ट। तो आपको करंट कैसा निकालना है इसके अंदर से, यू नो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, राइट? तो यहाँ पर ये पावर का वैल्यू 40 गिवन है इज इक्वल्स टू 440 इंटू आई। तो अब आप इसको जाकर डिवाइड करेंगे वहां 220 को 40 से, तो यू विल गेट अ डेसिमल वैल्यू ऑफ ए। कुछ आया समझ में, लिखकर समझाऊं? देखो P का वैल्यू गिवन था 40, V का वैल्यू गिवन था 220। आपने पावर को वोल्टेज से डिवाइड किया टू गेट दी आई हेयर। तो आप हर बार 60/220, 80/220, 100/220 आप इन्हें डिवाइड करके कितना करंट उस डिवाइस में ड्रॉ हो रहा है, तो उसमें से रन कर रहा है, आप पता कर सकते हैं। राइट एवरीवन और नॉट? सिंपल लो, सिंपल कॉन्सेप्ट। चले अभी आगे। जैसे वो यहाँ पर बता रहे हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर 15 वॉट भी हो सकती है, 40 वॉट भी हो सकती है, 60 वॉट भी हो सकती है, 100 वॉट भी हो सकती है। इसका मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बल्ब 15 जूल्स एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा हो, 40 जूल्स पर सेकंड कंज्यूम कर रहा हो, या फिर 60 जूल्स पर सेकंड कंज्यूम कर रहा हो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बल्ब्स हो सकते हैं। ऐसे ही द यूजुअल पावर ऑफ अ टीवी सेट इज 120 वॉट, मतलब 120 जूल्स पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है वो। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक आयरन बहुत हाई पावर का होता है। जो हीटर्स होते हैं वो इवन मोर पावर के होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं पर सेकंड। इसका मतलब मीटर में बिल बहुत आता है जब ये डिवाइसेस रन होते हैं। राइट एवरीवन और नॉट? है ना? तो वॉशिंग मशीन का पावर देखो 300 वॉट, मतलब 300 जूल्स पर सेकंड कंज्यूम कर रही है ये वॉशिंग मशीन रन करने के लिए। राइट एवरीवन और नॉट? वॉट से समझ में आया कि कितना ज्यादा हैवी होगा, उसका लोड कितना ज्यादा होगा ऑन द मीटर। ठीक है ना? चले अभी आगे। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ केम द इंटरेस्टिंग पार्ट। एक अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करने वाले हैं। तो चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट? तो कितना करंट होने वाला है अगर आपको पावर और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है? तो अभी तो डिस्कस किया। 40 डिवाइडेड बाय 220 जल्दी से फाइंड कर दो, आंसर बता दो मुझे फटाफट से। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। डेसिमल्स में आंसर छोड़ना कंपलसरी होता है बेटा। 0.18। गुड अद्विका, गुड स्पीड। हो गया बच्चे सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अद्विका ऐसे एकदम भी आंसर मत बता दे, बस ये बता दे कि आई हैव डन। तूने नहीं भी बोल, सबने वही लिख लिया होगा, किसी ने कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं किया होगा। आंसर नहीं बोलना है, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन शेयर कर दो। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. गुड वन। कौन बताएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वही सेम इलेक्ट्रिक बल्ब जब 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर चलता है तो वो 100 वॉट का पावर है, उतना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। अगर उसे 110 वोल्ट पे रन करें तो उसका पावर क्या आएगा? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, या फिर हम और कुछ चलो सोचो, जैसे जैसे जो जो करना चाहता है करो इस क्वेश्चन को एक बारी। कैसे करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो। यूनिटरी मेथड से वन का वैल्यू फाइंड करके, या फिर कोई फॉर्मूला पहले फाइंड करके।
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चा। मैम मुझे एक डाउट है। हम्म, मैम जैसे मैम जो पावर है मैम, अगर हम उसको सेम रख के हम वोल्टेज कम कर दे मैम, तो फिर करंट तो इंक्रीज हो जाएगा। क्या करें, फिर से बोल बेटा। मैम मैं कह रहा हूँ, अगर हम जैसे पावर को 100 वाट ही रखे और हाँ। हम वोल्टेज को कम कर दे मैम, तो फिर ऐसे तो करंट इंक्रीज नहीं हो जाएगा। तू कह रहा है कि पावर को सेम रखना है। नहीं आया मुझे, तेरा क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया, फिर से पूछ। मैम मैं कह रहा हूँ, जैसे पावर 100 वाट ही है और हम वोल्टेज को कम कर दे मैम, तो फिर पावर 100 ही है, वोल्टेज को कम कर दे। मैम हाँ तो तो फिर फिर, तो फिर आपने देखा है ऐसे में डिम जलने लग जाता है बल्ब। सोचो, जिसको बोलते हैं घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है, वोल्टेज नहीं आ रही ठीक से, मैम तो लेकिन बल्ब। करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। करंट इंक्रीज कैसे होगा? अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कम करंट फ्लो नहीं करेगा तेजस। मैम वो तो करेगा मैम, लेकिन मैम अगर हम मैम तूने इससे क्या पढ़ा था जब बेसिक्स पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी के, इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़े, तो हमने क्या पढ़ा है कि कम पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या होता है? कम करंट फ्लो होता है। कम होता है ना पक्का। जितना जैसे हमने बात की थी टेबल की, कि जितना ज्यादा इंक्लाइंड होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो उतना ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा ना उस कंडक्टर में से। तो फिर उसी कॉन्सेप्ट को, बेसिक्स को ही पकड़ के चलो। ठीक है। तो अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तू शायद ये मेरे से ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर करंट का फॉर्मूला लगा दें क्या, ऐसा कुछ? मैम नहीं, जैसे मैम P इज इक्वल टू वी आई से करंट फाइंड करते हैं हम। मैम हम्म। मैम तो फिर इसमें अगर V कम हो गया मैम, तो फिर यही बात मैं तुझे यहाँ बताना चाह रही थी, यही मैंने अद्विका को बोला था, मैं यहाँ समझाऊंगी सबको। एक्चुअली क्या है बेटा, आप इस क्वेश्चन में वी और आई वाला फॉर्मूला लगाओगे ही नहीं। क्यों नहीं लगाओगे? यही कॉन्सेप्ट जो अभी तेजस मुझसे पूछ रहा है, ध्यान से सुनो सब लोग। कि तेजस मुझसे कह रहा है कि मैम अगर यहाँ आप क्या कहा था उसने, वॉट सेम है और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम कर दिया, है ना? तो क्या कम करंट नहीं फ्लो हो जाएगा, है कि नहीं? है ना, वो यही कह रहा है ना। लेकिन आपने जो बेसिक्स पढ़े वो ये पढ़े कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है अगर, तो जो करंट का वैल्यू है वो भी कम हो जाता है, राइट? है ना, यही बेसिक्स पढ़कर आए हैं ना। इसीलिए इसी कंफ्यूजन के लिए हम यहाँ पर कभी भी आई का फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे। हम हमेशा यहाँ वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का जो है। गॉट इट एवरीवन और नॉट? आप देख लो, अभी करके देख लो, चलो इसको सॉल्व ही कर लो। आप अभी देखोगे इसको एक जगह इसे हम सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूला से, आई के फॉर्मूला से, और एक जगह वी स्क्वायर बाय आर वाले फॉर्मूला से। तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर था ना बेटा, बाय आर। मैं आपको कह रही हूं इस डिवाइस की रेजिस्टेंस पता कर लो आप। ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, क्योंकि वोल्ट चेंज करते ही इसका आई भी चेंज होने वाला है, इसीलिए आप इसकी आई पे बात ही मत करो। आप बात करो जो इसके अंदर रहेगी, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस। तो आप उस आई वाले फॉर्मूला को जो आपने पढ़ा अभी, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वो यहाँ पर यूज मत करो। जो आई स्क्वायर आर फॉर्मूला है ना, वो यहाँ यूज नहीं करना है। या फिर आपने यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला किया वी इंटू आई, वो भी यूज नहीं करना है। जिस भी कोई फॉर्मूला के अंदर आई आ रहा है उसकी बात मत करो। क्योंकि जैसे ही आपने वी चेंज किया, अभी आप यहाँ से आई फाइंड कर लोगे, मान लो आइए 220 वोल्ट पे 100 वोल्ट का आई आपने फाइंड कर लिया, और यहाँ जैसे ही आपने वी चेंज किया, आई भी तो चेंज होने वाला है। अब आप ये वाला आई पुट करके आप जो वो चीज कह रहे हैं वो न्यू पावर फाइंड तो कर रहे हो। थैंक यू बेटा जी। आप यहाँ पे न्यू न्यू पावर फाइंड तो कर रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है आपने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया तो आई तो चेंज हो जाने वाला है ना? क्योंकि हमने ओम्स लॉ में भी ये बात पढ़ी है कि पावर, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई, दे वैरी डायरेक्टली विद ईच अदर, राइट और नॉट? है ना,
पढ़ी है ना हमने ये बात। तो इसका मतलब आप यहाँ पर आई की बात कर ही नहीं सकते। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, आई की वैल्यू चेंज होगी, तो आई फाइंड करने से कोई फायदा ही नहीं हुआ यहाँ पे। इसीलिए आपको क्या फाइंड करना है, आर जो कि चेंज नहीं हुआ। रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है बेटा कंडक्टर की, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। आपने कितना मोटा, कितना पतला, कितना लंबा कंडक्टर लिया है, उस पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस तो। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर है ना? तो इसका मतलब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, दिस वन, v स्क्वायर बाय आर वाला, p इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर। और इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से आप r फाइंड कर लो। तो मैं यहाँ से r कैसे फाइंड कर सकती हूँ, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय p। व्हाट इज v स्क्वायर, 220। 220 का स्क्वायर फाइंड करो, उसे डिवाइड करो बाय r। व्हाट इज उसे डिवाइड करो बाय p विच इज 100 वॉट। 220 का स्क्वायर मीन्स 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। तो 22 इंटू 22 क्या होता है, 484 होता है ना 22 का स्क्वायर। Yes. तो 484 आ गया ना। अब ये जो नया रेजिस्टेंस आया है, उस रेजिस्टेंस से और इस पोटेंशियल डिफरेंस से आप नया पावर फाइंड करोगे यूजिंग विच फॉर्मूला, The Same same formula. formula. एब्सोल्युटली। गॉट इट एवरीवन और नॉट? क्लियर हो रहा है? क्यों आपको आई वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है? जब भी आप बोलेंगे वी चेंज हो रहा है, तो आप आई वाला फॉर्मूला नहीं ले सकते। जब भी आप बोले आई चेंज हो रहा है, तो आप वी वाला फॉर्मूला मत लो। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो वो फॉर्मूला नहीं लेना, क्योंकि y और i, v और i की वैल्यूज साथ में चेंज होती हैं, इसीलिए उन पे डिपेंडेंट फॉर्मूलाज आप नहीं कंसिडर करोगे। तेजस, जैसा तू फ्राउन कर रहा है, मुझे लग नहीं रहा मैंने तेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। मैम है ना, कुछ गड़बड़ हुई है ना? मुझे तो जहां तक तेरा क्वेश्चन समझ में आया, तूने मुझे ये बोला कि मैम मैं कह रहा हूँ कि मैम इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम आई और वी को फाइंड करें मैम, तो फिर वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होए। किस फॉर्मूला के बेसिस पे, 1 2 या क्योंकि 3? मैम p इज इक्वल टू वी आई। हम्म बेटा एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आप फॉर्मूलाज बनाते हो ना, तो कौन सी चीज किसके प्रोपोर्शनल है, फिर वहां से वो हटाकर कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। ये तो आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हो। यहाँ से विच इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट पे मत जाओ। ओके, आ रही है तेजस? अभी अद्विका ने भी यही बात पूछी थी ना कि मैम सेकंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ये हो गया। एक्चुअली जब आप क्या करते हो, आप हमेशा किसी चीज को प्रोपोर्शनल बताने लगते हो ना, तो उसमें से कांस्टेंट हटाते हो। जैसे वी स्क्वायर बाय आर में से आर इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस का, है ना। तो आपके लिए उस फॉर्मूला में कोई रेजिस्टेंस तो होना चाहिए ना, जब आप डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कुछ बात करो तो। मजा नहीं आया है ना तेजस एक्सप्लेनेशन से? आई नो तूने सिर तो हिलाया, बट मुझे मजा नहीं आया। चल मैं तुझे अच्छे वर्ड्स में ढूंढ के बताऊंगी इसकी एक्सप्लेनेशन, कि तू कन्विंस हो जाए, ठीक है? मैम अभी अगर के हम लिए ये यूज ही नहीं कर सकते तो फिर ये फॉर्मूला है। आपकी कन्वीनियंस के लिए बेटा, अगर आपको यूज ही नहीं कर सकते वाली बात नहीं है। अगर आपको आई और आर के बेसिस पे क्वेश्चन दिया होगा, तो आप मैंने अद्विका ये बात नहीं बोली कि आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। मैंने ये बात बोली कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां वी चेंज हो गया, वहां ये फॉर्मूलाज यूज मत करो। अब अगर वी ही चेंज, इन इन क्वेश्चंस को केस 1 केस 2 क्वेश्चंस कहती हूँ मैं। केस 1 क्या है, 220 वोल्ट पे 100 वॉट है, 110 वोल्ट हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब ये केस 1 गिवन है 220 वोल्ट और 100 वॉट। यहाँ से कोई एक चीज निकालकर जो नेक्स्ट केस के अंदर चेंज नहीं हो, उसे नेक्स्ट केस में अप्लाई करो, ताकि वहां पर पावर निकल सके। राइट, तो केस 1 केस 2 बेस्ड क्वेश्चंस है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक सिचुएशन आपको गिवन है, वहां से अगर आप एक पैरामीटर चेंज कर दो तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाए, जैसा क्वेश्चन हो, तो वहां आप एक ऐसी चीज फाइंड करते हो जो कि चेंज नहीं होगी सिचुएशन चेंज होने से। तो वी चेंज होने से क्या चेंज नहीं होगा, वी चेंज होने से आई तो चेंज हो ही जाएगा। तो आई वाला फॉर्मूला यू कैन नॉट यूज, तो आर वाला फॉर्मूला यूज करो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अभी कुछ लगा, कुछ समझ में आया?
अद्विका बेटा पक्का? Yes, ma'am. किसको लग रहा है नहीं मैम अभी भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो? Ma'am, could you give an example where was this formula? हाँ हाँ, अभी सिंगल जब क्वेश्चंस आएंगे ना, जहां पर अभी आएंगे वो क्वेश्चंस बेटा, जहां पर आपको सिंपली करंट बता रखा होगा, रेजिस्टेंस बता रखा होगा, कैलकुलेट कर दो पावर क्या है डिवाइस की, कि इतना इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है और इतनी इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस थी, तो इसकी पावर बता दो। तो आप ऐसे स्ट्रेट केसेस में करोगे तो वो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, लेकिन केस 1 केस 2 स्पेशली जहां V और I चेंज हो रहा हो, ऐसे केसेस में वो फॉर्मूला मत लो जिनमें V और I है। गॉट इट? समझ में आ गया ना? अभी तो कहाँ तक पहुंचे थे हम? 484 हो गया था, है ना? Ma'am, अब तो जो रेजिस्टेंस आ गया था 484 ओम्स आ गया था, उसको इसमें पुट करो फॉर्मूला में और जल्दी से बता दो मुझे पावर क्या आ रही है। 25 over. Ma'am, 25 watts. So 25. 25 आ रहा है, 25 चेक करें। watts. देखो 484 ओम्स और 25 वोल्ट, ठीक है ना? क्लियर है ना बच्चे? चलो नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का V स्क्वायर बाय आर भी एक फॉर्मूला है, I स्क्वायर बाय आर भी एक फॉर्मूला है, VI भी एक फॉर्मूला है, IR स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है। बी पार्ट, राइट नो? चले नेक्स्ट करें। राइट अब हमें आगे चलना है और इसी फॉर्मूला का एक दूसरा फॉर्म और कवर करना है। दैट इज, अगर हम यहाँ से कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय by an electrical appliance or electric current over time taken, तो आप उसे इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करते हैं, राइट? और जब आप यहाँ पर वर्क डन को रिप्लेस करना चाहें तो आप उसे एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाय दैट अप्लायंस, राइट? तो क्या हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं व्हेन वी ट्रांसपोज दिस टी एंड मल्टीप्लाई इट विद पी? तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मेरे घर के जो मीटर में जो बिल आ रहा है, आप लोग आज अपना बिल देखना, सब लोग घर का जो बिल आता है ना, आज आप लोग सब लोगों से पढ़ोगे, तो उस घर के बिल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर आप देखोगे कि जो यूनिट्स में कैलकुलेशन आ रहा है, या कभी न्यूज सुनी हो कि गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज कर दिया इलेक्ट्रिसिटी का, डिक्रीज कर दिया, तो वहां वो यूनिट्स पे बात करते हैं कि एक यूनिट का क्या कॉस्ट हो गया। तो वो एक यूनिट क्या होता है? किलो वॉट आवर। और किलो वॉट आवर मीन्स, किलो वॉट देखो लिखकर बताओ, किलो वॉट आवर क्या लग रहा है ये? किलो वॉट इज द यूनिट फॉर पावर एंड आवर इज द यूनिट फॉर टाइम। तो पावर इनटू टाइम टुगेदर का यूनिट है किलो वॉट आवर। तो ये किसका यूनिट होता है? दिस इज अ यूनिट फॉर एनर्जी। तो जो आपके घर में बिल आता है वो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है उसके बेसिस पर आता है। तो वो कैलकुलेट कर कैसे करता है मीटर? आपने कितने कितने पावर के डिवाइसेस कितने कितनी देर रन किए हैं घर में, डिपेंडिंग अपॉन दैट इज डिसाइडेड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। गॉट इट एवरीवन और नॉट? मतलब आप 100 वॉट के 5 बल्ब जला रहे हो फॉर 1 आवर ईच एवरी डे, तो आफ्टर 30 डेज कितना बिल आने वाला है? 100 वॉट का बल्ब था, राइट? 100 वॉट इंटू 1 आवर ईच डे चला रहे हो तो 1 आवर, and for 30 days चला रहे हो into 30, whatever is the value together that is the energy consumed on in 30 days for those। अच्छा मैंने into 5 तो किया नहीं, अगर 5 सच बल्ब से तो into 5 भी अभी होना बाकी था। got it everyone or not? है ना? तो आपके घर का बिल कैसे डिसाइड होता है? सारे घर के डिवाइसेस, 3000 वॉट की वॉशिंग मशीन है, 4000 5000 वॉट का एसी है, देन अगेन फ्रिज है, ऑल दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर हाउ लॉन्ग आर दे रनिंग पर डे, या फिर फॉर 30 डेज हाउ लॉन्ग हैव दे रन, एंड उसी को मल्टीप्लाई you do and you get the energy consumed, and based on that per unit energy का क्या slab decided है by government in your area, depending upon that you are charged। बोलो चिन्मय बच्चे। But for the unit of time, do you use hours, minutes, or seconds? In आवर बेटा, energy? आवर। इफ यू Hour. आर Yes, sir. यूजिंग किलोवाट,
दैट इज अ बिगर यूनिट ऑफ पावर, देन यू यूज आवर्स। अगर सेकेंड्स में कैलकुलेट होगा, कितना बड़ा वैल्यू होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में बेटा, है ना बच्चे। तो आप यहाँ वॉट की जगह पर किलो वॉट यूज करते हैं। अब मतलब आप जब कहते हैं 3000 वॉट एक वॉशिंग मशीन कंज्यूम करती है पर सेकेंड, तो आप उसे 3 किलो वॉट कहते हैं, राइट। तो you are using a bigger unit for power, thus you are using a bigger unit for time as well. Got it? लेकिन अगर आपने वहां वॉट यूज किया है तो फिर वॉट और सेकेंड होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। if the power is calculated in watts, then the time is taken in seconds. Got it बच्चे? चलें अभी आगे। It is obvious that electrical energy consumed by an electrical appliance is given by the product of power and the time for it which it is run or for which it is used. इसका मतलब it is depending, the electrical energy is depending upon the power, कितना पावर का डिवाइसेस रन कर रहे हो, कितने एसीज चल रहे हैं घर में, कितने वॉशिंग मशीन्स चल रही हैं घर में, और कितने फैंस चल रहे हैं, तो कितने कितने पावर के चल रहे हैं, है ना। आप लोगों ने देखा है वो रेटिंग, देखा आजकल 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, देखा है कभी मम्मा पापा के पास साथ इलेक्ट्रिकल गैजेट को लेने गए हो तो उसमें मम्मा पापा ट्राइज टू गेट द मैक्सिमम रेटिंग। व्हाई? क्योंकि वो कम वॉट के होते हैं और वो बेटर एफिशिएंसी दे रहे हैं, तो वो कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए दे आर लाइक द डिवाइस दैट इज यूजिंग लेस ऑफ एनर्जी एंड डूइंग द सेम टास्क एज एफिशिएंट एज द अदर वन, तो फिर आप उसे ज्यादा स्टार्स देती है गवर्नमेंट। तो ज्यादा स्टार्स वाला 5 स्टार फ्रिज खरीद के लाते हैं, 5 स्टार एसी खरीद के लाते हैं, ताकि उनका पर मंथ जो रनिंग कॉस्ट आए वो कम आए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर उसका कॉस्ट कम आए, राइट बच्चे। ओके, तो पावर पे डिपेंड करता है आपका कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है, एंड टाइम पे डिपेंड करता है कितना टाइम रन कर रहे हो। इसीलिए तो मम्मा पापा कीप्स ऑन टेलिंग यू, जिस रूम से बाहर आ रहे हो वहां का फैन बंद कर दो, वहां की लाइट्स बंद कर दो, बिकॉज एवरी मिनट काउंट्स हियर। For how long is that device used? It is counted by the meter based on which you are getting your electricity bill, right? ठीक है बच्चे। नाउ अगर आप यहाँ पर यूनिट्स देखेंगे तो पावर is in watts and time is in hours. So watt hours. So what is 1 watt hour? 1 watt hour is the unit of electrical energy. Watt hour is the unit for electrical energy. So watt is the unit for power and watt hour is the unit for energy. Got it everyone? कहाँ confusion होगी एग्जाम में? वॉट किसका यूनिट है? पावर का। और वॉट आवर किसका यूनिट है? अभिनव, वॉट आवर किसका यूनिट है बेटा? अभिनव, Yes, mom. म्यूजिक चल रहा है ना ईयरबड्स में? No, ma'am, not at all. पक्का? No. फिर व्हाट डिड आई आस्क यू? टेल मी। Ma'am, what is the watt hour is unit of watt, ma'am? हाँ, तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इन वॉट आवर्स? टेल मी देन, व्हाट इज द आंसर टू दैट? कौन सा सॉन्ग सुन रहा था तू? नहीं सुन रहा हूँ सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं पता? और किसी को चाहिए वेकअप कॉल क्या? सब जाग रहे हैं? पक्का? ठीक है। तो वॉट आवर बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हुआ ना, क्योंकि देखो आपने जब पावर इनटू टाइम किया तो आपके पास आया ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट और नॉट? एनर्जी का फॉर्मूला इज पी इंटू टी। तो पावर के लिए इट इज वॉट एंड आवर के लिए, टाइम के लिए इट इज आवर। तो वॉट आवर इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट? अब आगे हमें कमर्शियल यूनिट भी पढ़ना है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो लखमीर सिंह में जितने फॉर्मूला, जितने इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस हो वो करना शुरू कर दो, क्योंकि देयर इज ओनली अ स्मॉल थिंग लेफ्ट दैट वी नीड टू डू नाउ। जब हमें कमर्शियल यूनिट पढ़ना है, इसे किलोवाट आवर को ही पढ़ना है, तो वैसे तो आप लोग ये फिनिश कर भी सकते हो,
और 2-3 मिनट्स एक्सटेंड करके कर दे क्या इसको फिनिश? पर मैं चाह रही हूँ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ करना, तो कोई बात नहीं, आज इसे अभी और आगे नहीं करते, पर आप चाहो तो इसे रीड करके चैप्टर फिनिश की तरफ आगे बढ़ सकते हो। यू कैन स्टार्ट डूइंग योर, ये हीटिंग इफेक्ट मत करना, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस करना शुरू कर सकते हो। Okay, ma'am. राइट एवरीवन? Right, ma'am. Yes, ma'am.